I said, good evening, ladies and gentlemen. That's not a good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Yes, that's like my audience, ladies and gentlemen. Good evening and welcome to Unacademy Rankers Summit 2023. Can we have a big round of applause for all of you all to taking time out and be a part of this event? I know that you all have been waiting for so long and I have been totally reading your faces. So we're going to begin really shortly. We're going to begin now. So ladies and gentlemen, let me introduce you all to myself. I am MC Prachi Rastogi. I'm going to be your host tonight. And let's hope that today we all celebrate your spirit, your journey and your achievements to the fullest. Are my rankers excited? Yes. Only 2 people are excited. Ladies and gentlemen, I've been told that in this room, there are 30 AIR rankers who are under 100. Is that true? You know, if I had AIR 1, I'll be going like, woohoo! Where is the Josh? Are my rankers ready? Yes! Are my rankers ready? Yes! All right, let's begin. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this awesome day. A special warm welcome going out to the esteemed rankers. We celebrate you today. Today we have gathered here to celebrate your achievements, all the rankers who have been with Unacademy and conquered all milestones and throughout their journey to become champions. We commend their hard work and they are an example to all the learners out there, all the prospective admirers who are looking at you right now. Trust me, India is looking at you and going like, wow, I want to be that person. So you are that person and we're here gathered to celebrate you all. So, as I told you, I'm MC Prachi Rastogi, but that's not the only name you need to know today. There are 30 faces among this crowd that I'm really proud of, and so is Unacademy. So let us begin the session. When I tell you all to show enthusiasm, I do not mean you all to just clap like this. I want you all to truly enjoy this moment. So can we have a quick activity with me all? Show your hands like this, so I can see your pretty hands. Yes, well kept. Yeah, better than mine. Okay, let's put out one finger and tap it on the wrist. Wrist. Okay, then 2 fingers. Now let's move to the palm. 3 fingers. Now 4 fingers. And 5 fingers. And that's like a clap, ladies and gentlemen. Let us begin this evening. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Venama. On that note, I invite our next speaker and also the speaker who would commence this event. I invite Mr. Umesh Tande, also our admirable Umesh sir, to please come on the stage and deliver the inaugural speech. Good evening, everyone. Big congratulations to all top rankers and top educators. यकीन मानिए जितना आप लोगों को वेट रहता है आपके रिजल्ट का, उतना ही हम लोगों को वेट रहता है आपके रिजल्ट का. जितना आप प्राउड फील करते हैं अपने रिजल्ट को लेके, उतना ही हम जितने एजुकेटर्स रहते हैं उतना ही हम भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हम लोग भी वेट करते हैं. आपके पेरेंट्स लोग जितना प्राउड फील करते हैं कि आप इतना अच्छा रैंक लाए, उतना ही आपके रिजल्ट के बाद हम प्राउड फील करते हैं. आपको अगर मैं बताऊं कि अभी हमारा सेकेंड रैंकर समिट हो रहा है. लास्ट ईयर भी रैंकर समिट था और हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद होगा क्योंकि 1 साल हो गया है. किसी को याद है कि लास्ट ईयर का जो रैंकर समिट हुआ था उसमें और आज जो हमारा रैंकर समिट हो रहा है 18 मार्च, उसमें क्या कॉमन चीज़ है? किसी को याद है? आई होप उतना याद नहीं होगा. लास्ट टाइम जो रैंकर सबमिट हुआ था वो 27 मार्च को हुआ था और इस बार जो हो रहा है वो 18 मार्च है. आपको लगेगा सर इसमें कॉमन क्या चीज़ है? वो तो 27 था, ये 18 है. ध्यान से अगर आप सोचोगे, क्योंकि वी आर इंजीनियर, हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं. 2 + 7 भी 9 है और 1 + 8 भी 9 है. यही तो इंजीनियर्स लोगों में खासियत है कि हम लोग हर चीज़ को कैलकुलेट ही करते हैं. और जब कोई चीज़ ना ऐसी कॉमन होती है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला रहता है, एक अच्छा मैसेज जाता है. नहीं जाता अच्छा मैसेज?
मैं अगर आपको अनअकैडमी के अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूं कि 2022 में हम लोग रैंकर सबमिट किए थे, अगर आपको रैंक्स की बात करूं कि टॉप 5 में कितना हम लोग का रैंक आया था, तो टॉप 5 में सिर्फ 4 स्टूडेंट थे उस समय। फर्स्ट टाइम हम रैंकर सबमिट किए थे। इस बार सेकेंड टाइम हम रैंकर सबमिट जब कर रहे हैं तो टॉप 5 में हमारे पास 11 स्टूडेंट है। लास्ट टाइम टॉप 10 जो हमारा जो रैंक था उसमें टॉप 10 में हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो 7 थे, और इस बार टॉप 10 में 18 है। और ये जो 2023 का जो रिजल्ट है ये अभी लास्ट 24 आवर्स हुआ है, और ये अभी अकाउंट इसका बढ़ते जाएगा। तो जो अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर में हमको जो पता चला है वो ये रिजल्ट है। तो आप ये सोच सकते हो कि डे बाय डे हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, रिजल्ट हमारा अच्छा होते जा रहा है, और हमारा जो मेन मोटिव है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, उसमें डे बाय डे हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी एजुकेटर्स के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस सभी एजुकेटर का रहा है। क्योंकि ये जो क्रेडिट है अनअकैडमी में जितने भी टॉप एजुकेटर्स है, ऑल एजुकेटर, ये क्रेडिट पूरे एजुकेटर्स को जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ऑनलाइन से रिजल्ट है। पूरा का पूरा जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका रिजल्ट है। जब नेक्स्ट टाइम जब 2024 में हम रैंकर सबमिट करेंगे तो उस समय हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का होगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन का रिजल्ट था। अब क्वेश्चन ये होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कैसे होगा, क्योंकि इस बार हम लोग ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अनअकैडमी गेट और ईएससी का ऑफलाइन बैच भी दिल्ली में स्टार्ट कर रहा है, और जहां से मैं यहां से जो आप लोगों को जो स्पीच दे रहा हूं ये दिल्ली का हमारा सेंटर है, तो ऑफलाइन की क्लासेस यहां भी स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट आएगा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट और भी बेटर होगा, क्योंकि हम डे बाय डे जब आपका ग्रोथ बढ़ते जाता है, जब डे बाय डे हम अच्छा करते जाते हैं तो फिर रिजल्ट आने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑनलाइन में हम 2 साल में जो अचीव किए हैं उसको ऑफलाइन को भी वही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, रिजल्ट वाइज भी वही प्रोवाइड करे, आपको अच्छा फील होगा। अगर मैं गेट के बारे में बात करूं, जैसे सभी लोगों को पता होगा जितने लोग बैठे हैं इस रूम में, कि जो गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 इयर्स वैलिड होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई बार पता नहीं होता है, जो लोग भी 2024-25 का जो एग्जाम देने वाले होंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गेट का स्कोर कार्ड एक ट्रम्प कार्ड के समान है। अगर आप इस स्कोर कार्ड को अगर एक अच्छा स्कोर लेके आ जाते हैं तो आप 3 इयर्स तक यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार आपका रैंक आता है 1200। अब 1200 के बाद आप सोचते हो कि यार 1200 में मेरे को पीएससी तो मिलेगा नहीं, और आईआईटी मेरे को अभी एक अटेम्प्ट और ले लेता हूं, एमटेक मेरे को मिल रहा है लेकिन मैं एक और अटेम्प्ट ले लूं क्या। सपोज करो अगर ये स्कोर कार्ड अगर 1 ईयर के लिए वैलिड होता तो आपके पास ये चांस नहीं होता, आपको डिसीजन उसी इंस्टेंट पे लेना पड़ता कि इस 1200 के स्कोर से, इस 1200 के रैंक से मेरे को क्या करना है, या मेरे को एमटेक करना है और पीएससी 1200 में सपोज करो नहीं मिल रहा है तो मेरे को डिसीजन लेना होता। लेकिन अगर मेरे पास 3 इयर्स अगर ये स्कोर कार्ड अगर वैलिड है और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा प्लेसमेंट हो गया है और मेरा अगर जॉब लग गया है तो मैं 1 ईयर जॉब करके भी देख सकता हूं, क्योंकि जब तक हम जॉब नहीं करेंगे हमको जॉब का नहीं पता चलता है, कई कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इयर्स के स्कोर कार्ड को आप बहुत ही बेटर वे में यूज कर सकते हो, क्योंकि इस स्कोर कार्ड को आप 2024-25 में भी यूज कर सकते हो। तो ये एक ट्रम्प कार्ड है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो गेट में तो इसका बिग एडवांटेज है फ्यूचर में। और मेरे को पता है कि जितने भी रैंकर्स है, क्योंकि इतने सारे लोग एफर्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गेट का जो एग्जाम होता है ये इंडिया का बेस्ट टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्वेश्चन का लेवल्स बहुत अच्छे आते हैं और जो क्वेश्चन का जो डेप्थ होता है वो बड़ा अच्छा होता है। एजुकेटर को पता है कि उनको भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप रैंकर्स, तो हम देखते हैं कि किसी का टॉप रैंक आ गया, AIR 1 आ गया, AIR 2 आ गया, AIR 10 आ गया, लेकिन हमको कई बार उनकी स्टोरी नहीं पता होती है, पीछे की स्टोरी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इतना अच्छा रैंक ला पाना। हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन सबको पसंद है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, पूरे के पूरे 1 ईयर या 2 ईयर पूरा कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपना जो टाइम होगा, वो बहुत सारा जो टाइम होगा उसको अलग टाइप से आप ट्रीट किए होंगे, आप कंप्रोमाइज किए होंगे आपके टाइम को। आज आपको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग है वो आपको पता है। जैसे मेरे को लगता है कि जैसे आज का जो दिन है ये आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी चाहते थे कि यार अगर हमारा 10th में अच्छा स्कोर आ गया, 12th में स्कोर आ गया, हमको कोई अप्रिशिएट करे। तो अनअकैडमी का जो रैंकर समिट जो प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों को अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है तो ये हमेशा लाइफ टाइम रहता है। ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, क्योंकि आपको जब कोई अप्रिशिएट करता है इन जनरल तो आपको आने वाले फ्यूचर में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूं। जब इतने सारे लोगों के सामने आपका अप्रिशिएट किया जाता है तो आपका इंटरनल जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जैसे कि
एजुकेटर का भी बढ़ता है जब उसके स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब स्टूडेंट उससे मिलते हैं, एक बार अगर अप्रिशिएट उस लेवल पे होता है तो एजुकेटर को लगता है कि अगले बार और एफर्ट मारना है। वैसे ही मेरे को लगता है कि एक एस्पिरेंट जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसको जब अप्रिशिएट किया जाता है तो उसकी जो आने वाली जो जर्नी है, जो आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें और भी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको कॉन्फिडेंस लेवल और मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि आप इस जर्नी को यहीं पे स्टॉप ना करें जितने भी टॉप रैंकर्स है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जर्नी जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल से स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस तरीके से लाइफ स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो वन स्टेप अहेड रहेगी। आप लोगों की जो लाइफ है बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी। तो ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, अभी लाइफ में आपको बहुत कुछ अच्छा करना बचा हुआ है। आप इस एप्रिसिएशन को आगे तक ले जाइए और हमेशा इसको मेमोरेबल रखिए कि इस टाइप का जो एप्रिसिएशन हुआ है, इस टाइप का जो अचीवमेंट आप पाए हो, इसको हमेशा लाइफ टाइम अपने साथ में रखिए। तो पूरे अनअकैडमी फैमिली के साइड से, पूरे एजुकेटर के साइड से मैं आप सब लोग को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में बहुत बेटर करो, जितना हो सकता आगे आप अपना फ्यूचर बनाइए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए इंडिया को, इंडिया के बेटरमेंट के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ही लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप ही यंग लोग हो, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो नंबर होता है इतने अच्छे परफॉर्मेंस का बड़ा छोटा नंबर होता है, तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी। आगे चल के जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा आगे तक लाइफ में जब जाओगे, तो आज तो ठीक है आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हम प्राउड से बोल सके कि देखो ये स्टूडेंट हमारा यहां कर रहा है। जब किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में जब आपका नाम आएगा और आप अगर जिंदगी में बहुत उस ऊंचाई पर पहुंच गए, तो हमारी तो एज हो चुकी रहेगी उस समय में, जब हम 15 साल 20 साल बाद बोल सके कि ये स्टूडेंट मेरा था, तो बहुत प्राउड फील होता है। मतलब वो इतना उसको वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता कि वो क्या प्राउड फील होता है। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ में आप अच्छा करिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much for your words, Umesh sir. Let's move on to the next segment, ladies and gentlemen. I know that you have spent a lot of time hard working and remembering all the formulas, and I don't know what else is the syllabus because I'm not aware. But I'm sure that you all have put so much hard work that I cannot even imagine. The pressure was here, but it's released now. So let's relax a little bit and have a fun activity with you all. I'm calling out 5 rankers who want to come on the stage for this activity. First come, first serve. जो भी आना चाहे वो stage पे आ सकता है. Yes, we have first person. Yes, 4 more volunteers. One more. Arun. Alright, so you all know why this has been given to you? ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं आप लोग, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको लिखना क्या है। आई हैव बीन टोल्ड दैट यू ऑल आर वेरी गुड राइटर्स, ठीक है? तो अब थोड़ा सा टेक्निकल से हट के आर्ट्स पे आते हैं। यू ऑल हैव टू राइट इन सच अ वे अ सर्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीचर दैट विदाउट नेमिंग दैट टीचर ऑडियंस को समझ में आ जाए कि आप किस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। बिना अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखे आपको उनके बारे में कुछ ऐसा लिखना है जिससे ऑडियंस को पता चल जाए कि आपने ये तो उन्हीं के बारे में लिखा है। ऑलराइट, यू ऑल कैन टेक योर सीट्स हियर। ओके, रिमेंबर टू राइट योर नेम एट द टॉप, जस्ट योर नेम एट द टॉप, एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर। ओके, एंड पिकाचू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू. So you have to come first, hand over the card to me, I'll read it out to the audience and the audience has to judge and guess who is that teacher we're talking about. Okay, are we ready? Yeah, please take your time. Is it possible to write multiple teachers? Definitely, you can. Okay guys, once you're done writing about your favorite educators, please hand over the card to me so I can read out to the audience and audience can guess who that educator is. Are we done? Likh liya? Fast. Okay, we'll start with you then, sir. Please come on the stage. तुम इसको 500 बार घर जाकर लगा लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? And who would like to guess? ये डायलॉग है? या इनके फेवरेट एजुकेटर का डायलॉग है, तुम इसको 500 बार घर जाकर लगा लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या?
बताइए, who says that? Is that true, Anshuman? Oh no, that was not true. Any more guesses? क्या स्माइल दिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर. थैंक यू सो मच फॉर गेसिंग इट राइट. इट इज राजीव सर. ऑलराइट, प्लीज कीप इट विद यू एज अ souvenir. Yes, what's your name? Rushi. Okay. So Mr. Rushi has written, टॉपर्स के सर पे सींग नहीं लगे होते. सेकंड डायलॉग, गोली मार दूंगा. आई एम लिटिल कंसर्न्ड. एंड ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है. ओके, हु वुड लाइक टू गेस हु दिस एजुकेटर इज? Mondal sir, is it true? No. Gill sir, is it true? Okay. ब्रांच बताइए. मैकेनिकल. राजीव सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर ऋषि एंड फॉर राजीव सर. थैंक यू सो मच ऋषि, प्लीज कीप इट विद यू. पिकाचू अभी डन? यस, प्लीज कम. Even I can guess the dialogues after what he has written. Okay, so Pikachu, aka Arun, has written first dialogue, one kick only. Second dialogue, go to hell. Jump from 10th floor. Third, Are Buffalo. Suparao sir. Correct? Congratulations, Suparao sir. What an accurate representations. Okay, please keep it with you. Yes. Please come on the stage. Adarsh Bharadwaj has written for his favorite educator. आश्रम में सबका स्वागत है. ओके. चाय में अल्फा पोलोनियम डाल के पीना. इज इट पॉइजनस बाय द वे? फर्स्ट वाला भी है ना. अच्छा, ये आपने काट दिया है फर्स्ट. दो लाइन. आश्रम में सबका स्वागत है. सही है. कंग्रेचुलेशंस गिल सर एंड कंग्रेचुलेशंस आदर्श. प्लीज कम ऑन द स्टेज. Shah Darshan. Yes, sir. Okay, so he has written a trait for the educator. Explains subject in a manner that it seems as if we are listening to an interesting storyteller. So this educator is a storyteller. He's a good narrator. उमेश सर. सर आप सबके आंसर कॉपी करके जल्दी बता दे रहे हैं. Alright, that is correct. Shah. Congratulations, Umesh sir. Congratulations, Shah. Only 3 words. I'll not copy anyone this time. Okay. Arpit Bharadwaj, about his favorite educator from an academy, says, feeling important है. Sir, किसी और को भी guess करने दीजिए. Yes. Anybody from this side? Shailendra sir. Congratulations, Shailendra sir. Congratulations, Arpit. It was a wonderful activity. I hope you all are now relaxed and well settled to take the event forward. Now, I would like to call upon Mr. Ankit Goyal, or as we say, Ankit sir, for a congratulatory message. So first of all, I would like to congratulate all the students that are present here. You really have cracked it. और जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग होती है एज अ पेरेंट जब आपके चाइल्ड कुछ ऐसा अचीव करता है विच दे हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, विच दे हैव टायरलेसली वर्कड आफ्टर. तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी लोगों को ऐसा फीलिंग आने वाला है जब हम लोग रैंकर्स को स्टेज पे इन्वाइट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू अवार्ड देम.
टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स दिस ईयर, तो ढांडे सर ने जैसा बताया, वी हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और मेरे को एक चीज लगता है कि यार जब हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली अनअकैडमी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वी हैव टायरलेसली वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द बेस्ट टीचर्स थ्रू आउट द कंट्री। चाहे हम किसी भी ब्रांच में देखें, वी हैव द बेस्ट कलेक्शन ऑफ टीचर्स, वी हैव द बेस्ट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ टीचर्स। और यहां पे हर टीचर खुद की एक जिम्मेदारी समझता है कि उन लोगों को बेस्ट कंटेंट देना है, बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस देनी है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चा एक रैंक लेकर के आता है, बच्चा एक सक्सेस पाता है। सिर्फ इतना नहीं कि यार बच्चे को पढ़ा दिया उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। मोस्ट ऑफ द टीचर्स हियर आर पर्सनली कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स एज वेल। काफी ज्यादा कनेक्शन रहता है, काफी ज्यादा चैट होती है, इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ। और हम लोग पिछली एक्टिविटी से भी देख सकते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा एंगेज्ड है, बच्चा बहुत ज्यादा कनेक्टेड है टीचर से, कि छोटे छोटे ट्रेड्स तक याद रखता है। और अनअकैडमी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, विच आई बिलीव एवरी स्टूडेंट विल एग्री, कि ऑनलाइन होते हुए भी इट गिव्स द फीलिंग ऑफ अ ऑफलाइन क्लास। कि जब हम बच्चे से बात करते हैं, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना, मतलब कभी भी हमें ऐसा बोरिंग वाला फीलिंग नहीं आता है, कभी भी हमें ऐसा मोनोटोनस फीलिंग नहीं आता है कि बच्चा हमारे सामने नहीं बैठा है। और कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी चीजें बदल गई जब हम लोग रेज अ हैंड फीचर इंट्रोड्यूस कर दिए कि बच्चा अब हमसे बात भी कर सकता है ऑडियो पे, तो क्लासेस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। तो अनअकैडमी ने प्लेटफॉर्म ही ऐसा बिल्ड किया है कि कहीं ना कहीं एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए जिसके लिए दिल्ली, हैदराबाद ऐसी जगह जाना बहुत टफ होता था, कि वो इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स से एक साथ पढ़ पा रहा है। तो इसके चलते ही इस तरह का रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इस साल का रिजल्ट ये प्रूव करता है कि भाई जहां अनअकैडमी की बात आती है वहां क्वालिटी की बात आती है, एंड वी नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वेदर इट मे बी इन टर्म्स ऑफ द टीचर्स, वेदर इट मे बी इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी प्रोवाइड बाय फार द बेस्ट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं रैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, तो देखो आप लोग जो सक्सेस आज अचीव किए हो, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेस दैट यू आर गोइंग टू गेट। कभी भी इस चीज के लिए सेटल मत होना कि यार आज हमने सक्सेस पा लिया है तो ये हमारा फाइनल गोल है, दैट इज व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग मोर इन आवर लाइफ। आप अगर अपने टीचर्स को भी देखोगे ना, आज की डेट में भी हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी वी कंपीट ऑन अ डेली बेसिस, वी ट्राई एंड इंप्रूव आवर कंटेंट, वी ट्राई एंड इंक्रीज आवर रीच, वी ट्राई टू रीच एज मेनी स्टूडेंट्स एज वी कैन। तो सेम वे में गेट रैंक को अपना एक मोटिवेशन बनाओ कि अगर मैं गेट में रैंक निकाल सकता हूं और ऐसी रैंक निकाल सकता हूं, यहां पे जो बच्चे बैठे हैं वो टॉप 10 टॉप 20 के अंदर हैं, तो जब आप देश के सारे इंजीनियर्स को पीछे छोड़ के टॉप 10 में लाई कर सकते हो, तो यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग दैट यू वांट। तो आपका नेक्स्ट गोल हो सकता है आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है, आपका नेक्स्ट गोल हो सकता है सिविल सर्विसेज निकालना है। ऑलवेज कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। कभी भी ये मत सोचना कि आपका पोटेंशियल वहां तक नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन है कि सक्सेस इज जस्ट अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो जब तक आप लोग और ऊंचा एस्पायर करते रहोगे और ऊंचे सपने देखते रहोगे, तब तक आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। बस इस मंजिल को मंजिल समझ के रुक मत जाना, इट इज जस्ट अ माइलस्टोन इन योर एंटायर जर्नी, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन इन योर एंटायर पाथ। अभी और बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करना बाकी है, बट डेफिनेटली एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों के अचीवमेंट्स ने हम लोगों को तो प्राउड फील कराया है, आपकी फैमिलीज को भी प्राउड फील कराया है। और जैसा ढांडे सर ने भी बोला यार, आपके रिजल्ट में हम लोगों का रिजल्ट भी छुपा होता है, क्योंकि हम लोग के लिए भी जिस दिन आपका रिजल्ट रिलीज होता है वो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट होता है कि हमारी साल भर की मेहनत क्या रंग लेकर के आई है, कितना हम लोगों ने मेहनत किया है, क्या हम पास हुए हैं या हम फेल हुए हैं। अगर हमारा बच्चा रैंक लाता है तो मतलब वो टीचर के लिए एक सर्टिफिकेट है कि यार कि हम लोग भी इस बार का गेट एग्जाम पास कर लिए हैं। तो आप लोगों के रिजल्ट से यार हम लोग तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और इसीलिए इस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बुला करके। और आप लोग भी इस इवेंट को एंजॉय कीजिए, इस सक्सेस को एंजॉय कीजिए, एंड देन मूव अहेड फॉर सम न्यू अचीवमेंट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, let us move on to that segment that we all have been waiting for. Let's move on to felicitation ceremony. For felicitation ceremony, I would like to call the educators first, and then I'll take the name of the learners. Then I shall reveal their ranks and their streams. The first award, I would like to call Prakash sir to present the award to Subhan Kumar Mishra, Civil Engineering, AIR first.
to present the certificate to Anshuman Agarwal for Engineering Science AIR 1. Okay, also guys, an interesting fact about Anshuman Agarwal is that he also scored 56 AIR in mechanical engineering. Let's all have a round of applause for him. Next, I would like to call Ankur sir and Shailendra sir to felicitate Rohit Bhagat Kalwat, Chemical Engineering AIR 1. Up next, I would like to call Garg for Civil Engineering AIR 2nd. Next, I would like to call Subba sir to felicitate Prabhav Verma, CSNIT 3rd AIR. I would also like to call the parents on the stage, the very proud parents on the stage. Next, I would like to call J.S. Gill sir to felicitate Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR.
Okay, I would also like to ask his parents to please come on the stage. The parents of Adarsh Bharadwaj. Adarsh has also secured 41st rank in mechanical engineering. Next, I would like to call Gothi sir to felicitate Satyam Shukla, CS and IT, All India Rank 4. Next, I would like to call Ankit Goyal sir to felicitate Sarv Verma. He has got 4th AIR in instrumentation engineering. It's time for the last felicitation for this segment. I would like to call SK Mondal sir and Deep Raj sir to felicitate Rushi Pradeep Kumar Karya for securing All India rank 7th for mechanical engineering. Now I'd like to call Praveen Kulkarni sir to share an important message. Very good evening all. Such a pleasant environment where we have seen true emotions of parents, students and all educators. And in this regard, I would like to share one important information. Our beloved educator, Jaspal Singh sir, he is a bit sick. So he tried his level best to attend this function, but he is running with high fever, so he could not come. Of us, a big round of applause for Jaspal Singh sir, who worked continuously for the welfare of civil engineering students. So Jaspal sir, a speedy recovery and hope you'll be back very soon and hoping to see you tomorrow. Thank you all. And यहाँ पे जो हम parents के feelings देखे, लाजवाब sir, we are bowing our head.
और इस मंच से हम और एक बात भी बताएंगे आपको कि और दुगना मेहनत करेंगे एज अ टीम। एज अ टीम और दुगना मेहनत करेंगे, हम मेहनत करते ही रहेंगे एंड विल स्ट्राइव फॉर योर वेलफेयर। थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir. Now let's move on to the next segment. You all have worked so hard to achieve this milestone. I'm sure as a learner, it is a proud moment for you all, and so it is for your educators. It's now time for us to let those emotions flow and express our feelings and emotions throughout the journey of preparation. I would now call educators along with their learners. One by one, they'll come on the stage and share a few words with us regarding their preparation journey and their milestone. So first, I would like to call Rajiv Singh sir and Praveen Kulkarni sir, along with Anshuman. Let's crack it, चल उठ जा। Let's crack it, जोर दे लगा। Let's crack it, भीड़ को छोड़ दे। Let's crack it, रास्ते मोड़ दे। Let's crack it, चल उठ जा। Let's crack it, जोर दे लगा। Let's crack it, भीड़ को छोड़ दे। Let's crack it, रास्ते मोड़ दे। Let's crack it, चल उठ जा। Let's crack it, जोर दे लगा। So Rajiv Singh sir and Praveen Kulkarni sir, you guys will go first about your experience, about Anshuman and how this journey has unfolded for you as an educator, and then Anshuman will share his thoughts. Anshuman, by the way, has again secured AI All India Rank 1 in engineering science. टाइम 2022 का जब अंशुमन ने गेट का एग्ज़ाम लिखा था तो हाँ बोलेगा तो व्हाट हैपेंड कि लास्ट टाइम व्हाट वाज योर मैकेनिकल रैंक 2091. and he was in third year, he got 2019, and in XC also you got some rank last year. Yeah, 222. हाँ तो next day he called me or the same day. Sorry. जब पिछली बार रिजल्ट आया था और आपको वो सफलता नहीं मिली थी जो आप चाहते थे तो आपने मेरे को उसके बाद कॉल किया था, ऐसा मुझे याद है. Yes. Yes. तो सर ने कहा था कल से क्लासेस लगानी शुरू कर दो वापस. ठीक है, हो सकता है पहली बार में असफलता मिले, इनको पहली बार में एक छोटी सी असफलता मिली जो ये चाहते थे, थर्ड ईयर में नहीं मिल पाया, बट ही कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड नेक्स्ट 200% एफर्ट, राइट. एंड यस, द रिजल्ट इज देयर, ऑल इंडिया रैंक XZ1, एंड नॉट ओनली XZ, मैकेनिकल ही डिड सो वेल, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 56. तो इट सेज कि ठीक है, एक छोटी सी सफलता अगर आपको मिल जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रुक जाएं, आप टूट जाएं. वही मौका होता है जब आप खड़े हो जाएं और अपने फुल एफर्ट, फुल एनर्जी को दें. एंड यस, लाइफ से उन सारी चीज़ों को हमें छीनना है जो हम चाहते हैं, और वो छीनना पड़ता है. बैठे बैठे अगर शेर सोचेगा कि एक हिरन आ जाए मैं खा जाऊंगा, नहीं होता है. यू विल हैव टू हंट फॉर द सक्सेस, राइट. So keep working. All my best wishes are with you. God bless you. As some of our educators said, you should not stop here. This is just a beginning. Success is not the destination. It is just the beginning. Okay? God bless you. All the best. Like, okay. राजीव सर की क्लास में we are like full of concepts, full of like energy. Like मुझे याद है मैंने एक बार सर से पूछ लिया था कि कॉपर डक्टाइल होता है कि नहीं. आफ्टर माय गेट 2022 अटेम्प्ट. बता दूं सर? बता दो, कोई इशू नहीं है. अंशुमन, तुम गुलाब का फूल लेकर CS डिपार्टमेंट के सामने घूम रहे थे क्या फर्स्ट ईयर में? You see, he asked me, actually I was teaching powder metallurgy, तो I was like going through some concept, तो he asked, सर कॉपर ज़्यादा डक्टाइल है सर या आयरन ज़्यादा डक्टाइल है? तो I said, मतलब कि तुम कॉलेज में थे तो फर्स्ट ईयर में क्या गुलाब का फूल लेके घूम रहे थे क्या? And he said these wordings to his father, and then he पापा ने कहा सही बोल रहे हैं सर. okay, so थैंक यू अंशुमन, यू डिड वेल. एंड आगे भी आप और भी सफलताओं को प्राप्त करेंगे. ये तो बस शुरुआत है, उड़ाने अभी और भी बाकी है, राइट. Thank you so much. Now I would like to call Krishna sir and Amit Zarola sir on the stage. Along with them, Subhan Kumar Mishra, who secured AIR first in civil engineering.
Krishna sir, Amit sir, we'll begin with you first, and then we'll move to Suban. Hello. Yeah, before going to start talking regarding Amit's journey, Subham journey, so the perfect person to talk about his journey is Jaspal sir. Unfortunately, we are missing Jaspal sir here. So I would like to say we miss him a lot here, because the journey of him is only because of Jaspal sir, I know it. And as a teacher, if any student is going to get the success, we feel it is our success. So we are very happy. And the journey of this student is inspiration to all students, all aspirants who are preparing for GATE or ESC or any kind of competitive exam. Because in his third attempt, he achieved this. And he worked hard 3 years. So this much journey and with consistency nobody can do, and he achieved it, and we are very happy for him. So पहले तो कंग्रेचुलेशंस सुमन. सो यहाँ पर यदि हम सुमन की बात करें तो सुमन ने रियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. और सुमन की जर्नी कुछ इस तरीके से रही है कि इन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया लाइफ में जॉब को क्विट करके, राइट. तो सुमन जो थे वो काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस्ड थे, काफ़ी अच्छा पैकेज भी ले रहे थे, कॉर्पोरेट लाइफ में थे, फिर भी उन्होंने ये डिसीजन लिया और एक अपने बीटेक कंप्लीट करने के काफ़ी लंबे समय बाद ये डिसीजन लिया कि उनको गेट ईएससी की तैयारी करना है. आप में जब सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, आप में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तब ऐसे कदम लेने की आप में हिम्मत आती है. तो आप लोग यदि आगे जर्नी अपना और अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं आप लोग, तो आपको सुमन से ये चीज़ जरूर लेना चाहिए कि जब आप में वो लेवल डेवलप हो जाए, आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तब आप कदम बिल्कुल अपने आगे बढ़ाइए. तो मेरी तरफ से पुनः आपको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी जो 3 साल की जर्नी रही उसका आज ये रिजल्ट है. थैंक यू सर फॉर दोज काइंड वर्ड्स. जैसा कि सर ने मेंशन किया कि मेरी अनअकैडमी की जो मेन जर्नी रही है वो जसपाल सर के साथ रही है. उनसे मैंने कई सारे कोर्सेज, चाहे वो प्लस हो चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो, वो मैंने उनसे लिए हैं. एंड यस, मैं अभी 2 दिन पहले सर से मिला भी था, वहाँ पे हुआ था, बट उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ पाए हैं. आई पर्सनली विश हिम स्पीडी रिकवरी. इसके अलावा यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, एक 3 साल का पीरियड मुझे लगा है टू गेट दिस रैंक, एंड ये फीलिंग बहुत अच्छी है. इवेंचुअली आप अगर चाहे जितने भी टाइम बाद एक जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट. That's all. Thank you. Suban, I would also like to ask you, to all the juniors and admirers who are watching you right now, would you like to give them some key elements for your good preparation, and how was your journey preparing for it? तो बेसिकली जैसा कि अभी सारे, जैसे उमेश डांडे सर ने भी बोला, बाकी एजुकेटर्स ने भी बोला, कंसिस्टेंसी इज़ द की. बेसिकली एकमात्र वर्ड अगर हमारे पास है जो कि सक्सेस को डिफाइन करता है, तो वो है कंसिस्टेंसी. अगर हर स्टूडेंट का नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में ही निकल जा रहा है, पर हमें सेम लेवल ऑफ एनर्जी के साथ जब तक वो गोल अचीव नहीं कर ले रहे हैं, हमें अब मेहनत करती रहनी है. तो यही मेरा मैसेज है सब स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं. Thank you so much. थैंक यू. जोर दे लगा, खेड़ को छोड़ दे, रास्ते मोड़ दे. Now, I've been observing for quite a long time. Mr. Subba Reddy, our Subba sir, and Mr. Sanchit Jain, our Sanchit sir, have been getting a little emotional. No, definitely, sir, you have to come. You have to come to share a few words and your raw emotions with us. खेड़ को छोड़ दे, रास्ते मोड़ दे, yes crack it, चल उठ जा. ओके, तो जैसा बाकी एजुकेटर्स ने भी बोला कि जब रिजल्ट आता है बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिलती है और एक बहुत लंबी जर्नी होती है जो कहीं ना कहीं जब अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होती है तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है. बट अभी इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉप 10 में, टॉप 100 में नहीं आ रहे होते और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है. तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही हमेशा ये रहा है कि वो बच्चे को मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता हूँ पोस्ट एग्ज़ाम, जो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी रैंक नहीं ले पाए
और यू नो इतने सारे लोग, यू नो एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब दो लड़ने खड़े होंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, वो अलग बात है, बट लाखों बच्चे पेपर लिखते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इवन अगर आपकी रैंक अंडर 500 है, अंडर 1000 है, तो भी आप भूलिएगा मत कि आप बहुत अच्छे से लड़े। और सिर्फ रैंक ही एक मात्र लर्निंग नहीं होती, थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत सारे कंसेप्ट्स, मैं तो बोलता हूँ जीवन जीने का एक तरीका आप सीखते हो। यू नो लाइक द रूल ऑफ 1/3, हर डे अच्छा नहीं हो सकता, कोई दिन खराब नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ हम डेली सीख रहे होते हैं। एंड अगेन दोज हु विल नॉट गो टू IITs, मे बी टॉप NITs, गुड ट्रिपल IITs, मैं CSIT की बात करूँ तो बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे, अच्छे अच्छे पैकेजेस, प्लेसमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सब लोगों को। और जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे अगले साल फिर से ट्राई करिए, लगातार काम करिए। मैं सुब्बा सर, गोटी सर, अमित सर, पूरी टीम यहाँ पे दिन रात लगी रहेगी कि आपको उस मुकाम तक अगली बार भी पहुंचाएं। थैंक यू। Also, before we move, can I also have Gothi sir on the stage as well? Let's crack it, जोर दे लगा Let's crack it, खेल इमोशनल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ऐसा लगता है मुझे कि मेरा खुद का रिजल्ट आ रहा है। आई एम स्टिल एज फ्यूरियस एज आई वॉज ऑन माई रिजल्ट डेज। जितना मुझे डर लगता था अपने रिजल्ट डे पे, आज भी उतना ही डर लगता है अपने स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट होता है। आप थ्रू आउट द ईयर इतना पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, इतना ज़्यादा बड़ा जर्नी उनके साथ में लेके चलते हैं। द फर्स्ट डे एवरी एजुकेटर एंड एवरी लर्नर विल बी एग्रीड विद दिस पॉइंट कि जब पहली दिन आप पढ़ते हैं या पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका माइंड या उतना, या जो आपकी लर्निंग या कैपेबिलिटी स्किल्स हैं, जो कैप्चर करने की पावर है आपके लर्निंग की, वो उतनी होती नहीं है। कंसेप्ट्स को स्लो पढ़ाना पड़ता है, बट धीरे धीरे करके जब आप कोर्सेस पढ़ते जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा कोर्सेस के इंटरनल कनेक्टेड कोर्सेस को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो एट द एंड ऑफ मे बी 7 मंथ्स या 8 मंथ्स या 10 मंथ्स आपकी लर्निंग या कैप्चरिंग पावर थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है। टीचर्स भी जल्दी कोर्स फिनिश कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी लेवल उस लेवल की हो चुकी होती है। तो जीरो से लेके वहां तक ले जाना आप लोगों को, और उसके साथ में उस जर्नी को इतना लेवल तक कंटिन्यू करके और फिर ये सक्सेस देखना, अल्टीमेट सक्सेस वहीं पे मिलती है हम लोगों को कि आप लोगों का रिजल्ट आता है। सो इट्स ऑल सेम। जैसा संचित सर ने भी कहा कि रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑल इंडिया 1 मिले या 10 मिले या 100 मिले या 200 मिले। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आपने लर्निंग सीखी, ऑफकोर्स लाइफ लेसन सीखे बहुत सारे सर से, ऑफकोर्स इसके अलावा आपने डिसिप्लिन सीखा, कंसिस्टेंसी सीखी। आपने सबसे बड़ी चीज सीखी है इस गेट की जर्नी में, वो है कि आप पढ़ना सीख गए। जो इतना लंबा, इतनी मेहनत के साथ में पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे कंटिन्यूस होते जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपको एमटेक में या अपनी जॉब में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी आदत हो गई है उस लेवल का काम करने की या उस लेवल का सीखने की। तो जो भी रैंक है, जिस टाइप की भी रैंक है, सर अभी थोड़ी देर पहले ही पूछ रहे थे कि क्या क्या रैंक है। देयर आर सो मेनी रैंक्स। सर ने काफ़ी सारी रैंक्स जो हैं वो कलेक्ट करके भी रखी हुई हैं। तो जो भी रैंक आई है, जिस टाइप की भी रैंक आई है, एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए एडमिशन्स की, अच्छी जगह पे एमटेक कीजिए, लर्न कीजिए। और जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ कि एमटेक सिर्फ ये नहीं करना है कि प्लेसमेंट लेना है, एमटेक इसलिए करना है क्योंकि आज से 5 साल या 10 साल के बाद आप लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे डिसीजन मेकर्स बनेंगे। कि मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे चलेगा, आप मुझे बता दो मैं काम कर दूंगा। नहीं, आपको बनाना है, आपको डिसीजन मेकर बनना है। और इसलिए आप ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट पे जाके या ऐसी बड़ी जगह पे जाके काम करके सीखेंगे, रिसर्च करके सीखेंगे, मास्टर्स में जाके, ताकि आपको कोर नॉलेज हो आपके डोमेन का, कुछ कोर्सेज का, कुछ टेक्नोलॉजीज का, जो आप इंडस्ट्री में जाके इंप्लीमेंट करेंगे और इंडस्ट्री में जाके फिर आप वहां पे उस लेवल पे काम करेंगे जिस लेवल पे आप बता सकते हैं कि यस मैंने ये IIT या IISc या NIT या किसी बड़े कॉलेज से सीखा है। एंड दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल, लर्निंग। सो एक जो मेरा हमेशा का गोल है, जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू। Yeah, first of all, congratulations. First of all, congratulations to those people who done the extremely great work in the GATE examination. So I want to read my ranks little bit, right? So we got 3rd rank, 4th rank, 9th rank, 13th rank, 18th rank, 21, 32, 40. So we got approximately out of 100, 52 ranks we got, 52. So I can't see, if you go this year any IIT, almost
10% is from an academy in every IIT. I'm really proud of this. I'm really proud of this. Whoever done this one, really thank you so much. You've done extraordinary work. I'm really proud of you, total Unacademy CSE team. Really proud of you. Thank you so much. And one more important thing is, from last 10 years, almost like 12 years, topper used to get either 82 marks, 81 marks, 80, something like that. This year, one of my student got 92 marks. From last 12 years, right, until now, no one crossed it. First time, right, one of my student crossed it. 92, one more got 90. Two people, third rank, fourth rank, third and fourth. Some more people close to 89, 88, something like that. We really proud of every one of you. And one more, those people who tried their level best, maybe, right, maybe God is not with you or whatever it may be the reason, right? So it is not the end of the life, right? If you try one more time, you may get it. God having different plan. Maybe God is indirectly testing your patience, right? He will try to keep some, he will try to play some game with you to know what exactly you are, right? If you are really strong person, right, do one more attack, most probably you are going to be successful. If not, also no problem. If you have knowledge in CSE branch, you have infinite opportunities. So those people who want to crack nice rank, right? So please come and join with us, right? We are our CSE team is there with you. We will support you 24/7, right? रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल Next, I would like to call Sujay sir and Shishir sir to felicitate Darshan Deepesh Kumar, who has secured AIR 13th in Electronics and Communication. I would like to call Sanchit sir to felicitate Anjali Chauhan and for securing an AIR of 13 in CS and IT. Let's crack it, चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे let's crack it चल उठ जा let's crack it जोर दे लगा let's crack it भीड़ को छोड़ दे let's crack it रास्ते मोड़ दे. Next, I would like to call Amit sir and Gurupal sir to felicitate Arun Madhav for securing 21 AIR in CS and IT.
Next, I would like to call Sumit sir to felicitate Ankit Kumar Soni. He has secured 13th AIR in chemical engineering. रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे. Next, I would like to call Ankur sir on the stage to felicitate Dharamveer for scoring All India rank 21 in chemical engineering. Next, I would like to call Shailendra sir to felicitate Arpit. He has secured 17th AIR in chemical engineering. Now I would like to call Umesh sir and Shishish sir to felicitate Shivam. He has secured 15th AIR in electrical engineering. रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे यस क्रैक इट रास्ते मोड़ दे यस क्रैक इट चल उठ जा यस क्रैक इट जोर दे लगा यस क्रैक इट भीड़ को छोड़ दे. Stage to say a few words. Hello. Yeah. Yeah. So sorry for interrupting everyone. So I want to say something about one special student. His name is Pikachu. His name is right. So the reason why I like him is actually is keep on watching before joining an academy. Is watching the YouTube like this here and like this. One of the faculty is saying, right, if you do the computer science gate examination, these are advantages and all, but he belongs to electrical. He keep on watching the YouTube without joining an academy. So one faculty said that if you join CSE, these are the opportunities. Then immediately he shifted to CSE. He is electrical, he shifted to CSE. He started asking, he joined, right, whatever I am saying, he is following everything okay. Right? So after observing few days, I got to know that he is so talented. And one more, after gate exam is over, results are announced. Every student asking, right? Because every student will see in the chat, in the recording also, live also, everyone used to see, sir, what the Picasso got? Is he got first rank or not? Everyone asking. So he done that much extremely hard work,
So even though he belongs to non-CSE, right, he never, right, no one knows that he belongs to non-CSE. So finally, he got the All India rank 21, maybe 5 questions went wrong, right, but he done really extremely very good work. We really proud of all total Unacademy CSE team. We are really proud of you. Can you come once, Pikachu? He is the favorite person of total CSE. He is unofficially rank 1, unofficially. Right? Officially not came, at whatever it may be the reason, but he really deserve, right? Very good rank. Right? He is from Chennai, right? He really done great work. All CSE people, faculty, students, everyone is, right? Huge fan of this particular person. Thank you so much. Wherever you go, I hope you will reach that top position. Thank you so much. Really proud of you. Thank you. You want to say anything? I didn't think. Shall I? Thank you. Now with this, I would like to call Gurupal sir to deliver a vote of thanks. Yes, crack it, भीड़ को छोड़ दे. Yes, crack it, रास्ते मोड़ दे. Yes, crack it, चल उठ जा. Yes, crack it, जोर दे लगा. Yes, crack it, भीड़ को छोड़. So, thank you so much. सबसे पहले तो आप ही का थैंक यू यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए. तो जैसा कि यहाँ पर एजुकेटर्स भी हैं, लर्नर्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं. थैंक यू बोलने के पहले एक छोटी सी चीज़ पहले बोलना चाहूँगा. यहाँ पर अभी जस्ट मुझे मैसेज आता है सौरभ पाल का, और ही गॉट AIR 2 दिस ईयर इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच. और सौरभ जो है वो अभी जस्ट एयरपोर्ट पे पहुँचे, उसकी फ़्लाइट जो थी इसी टाइम पे थी, तो अभी जस्ट लैंड हुई और वो अभी रास्ते में ही होगा. तो इतनी मशक्क़त करके आ रहा है, और हो सकता है ये वीडियो जब YouTube पे जाएगा तो वो देखे. तो सबसे पहले तो सौरभ तुमसे स्टार्ट करूँगा. और एक गुरु के लिए बात कही गई है, जो एजुकेटर्स हैं हमारे उनके लिए बात की गई है. सब इसको मोस्ट प्रॉबली किसी ने सुना नहीं होगा. ये कोट मैंने इसलिए ये कोट लिया, और ये बहुत ही वाइब्रेंट लगा मेरे को और बहुत ही सच्चा लगा कि सब धरती कागज करूं, प्लीज सुनिएगा, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब वरनाएं, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. तो इसके माध्यम से एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा, वो ये कि जितने भी हमारे गुरुज हैं, जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, उन सभी का सबसे पहले थैंक यू. क्योंकि हम सारे लोग, क्योंकि एज ए एजुकेटर मैं ये फील करता हूं कि हम सारे लोग काफ़ी एफर्ट देते हैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनाने के लिए. बिकॉज अब तो ये ऑफलाइन हम यहाँ दिल्ली के सेंटर में है, बट वो जो ऑनलाइन की कनेक्टिविटी होती है कहीं से भी कहीं तक, चाहे वो प्लस की क्लास हो, स्पेशल की क्लास हो, यूट्यूब के सेशंस हो, कहीं से भी कहीं तक मिस ना हो. इस कारण सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. जितने भी यहाँ पर एजुकेटर्स हैं उन सभी का बहुत 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 थैंक यू. क्योंकि ये कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागे पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताओ. कि प्रभु ने भी कह दिया कि भाई सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करें. और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा गया है, सेकंड जो थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे यहां पर है, कि सबसे जो पहला गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे इन गुरुजनों को धन्यवाद, इन माता पिता को धन्यवाद जो यहाँ पर बैठे हुए हैं. मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा कि आप भी आए और स्टेज पर भी आए, और सर ने काफ़ी अच्छे से बात अपनी रखी, और वो इमोशनल भी हो गए थे. वो देख करके मैं भी थोड़ा सा भाव विभोर हो गया, इमोशनल हो गया. तो उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. एंड प्लीज एक तो बनती है ताली जबरदस्त. और अब लर्नर सोच रहे होंगे सर इतना एफर्ट करके हम रैंक लाए, सर हमको भी थैंक यू बोल दो. तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 15 को रिजल्ट आने वाला था, 16 को रिजल्ट आया, 16 तारीख की रिजल्ट के बाद आज हम यहां पर बैठे हैं. 2 दिन के अंतराल में इतनी फास्ट हमारी अनअकैडमी की टीम ने इतनी फास्ट सारे लोगों से कनेक्शन किया. बहुत सारे रिजल्ट आज भी मेरे को मोबाइल में अभी 145 एक लड़का बोला कि सर मैं रिजल्ट मेरा, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो सर मैं भेज नहीं पाया था, अभी उसने रिजल्ट भेजा. तो जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, जितने भी हमारे रैंकर्स हैं, और जितने भी ऐसे रैंकर्स हैं जो आने वाले हैं, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद. जो भी यहां पर अभी आए हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया.
इसलिए भी शुक्रिया, पहला क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, कड़ी मेहनत से कंसिस्टेंसी, क्योंकि गेट का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना वो एक गेम है कंसिस्टेंसी का। इतना आपने एफर्ट दिया, साल भर लगे रहे, उसके बाद टेस्ट दिया, उसके बाद फिर टेस्ट में डिमोटिवेशन आया, फिर अपने आप को मोटिवेट किया और प्रिपरेशन करते रहे। जो लोग स्पेशली ड्रॉप लेते हैं उनको पता है कि कितनी फीलिंग रहती है कि भाई ड्रॉप लेकर के पढ़ना। हम 3 साल से लगे हुए हैं, उसके बाद रैंक 1 अचीव किया, तो सारे लर्नर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एट लास्ट ये जो इतना अच्छे से मैनेज किया 2 दिन से, कल हमारा यहां पर ऑफलाइन का जस्ट सेंटर लॉन्च इवेंट हम लोगों ने किया, और कल मतलब कि 19, अभी फिलहाल आज 18 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 18 मार्च लिखा है, कल 19 को जो इवेंट, मैं पहले ही बता दूं, जो सक्सेसफुल इवेंट होने वाला है, इंजीनियर्स कनक्लेव जो होने वाला है और जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, मुझे पता है हमारी टीम का इतना एफर्ट लगा है। अनअकैडमी की जो टीम है, जो ऐसी टीम है जो इधर खड़े हैं, जो कभी भी अभी ऑन कैमरा नहीं दिखने वाले हैं, जो बैक साइड पे वर्क कर रहे हैं, आप सभी का यार, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir. And at the end of the day, concluding the event, thank you all for accepting our invitations and being with us here today. It was great seeing you all with your aims, with your wins, with your inspirations. You all are an inspiration to whole country. We will now invite you all to please proceed towards the dinner and meet your educators in private and personal, to congratulate each other, to share more journeys, more goals, and more achievements together. With that, I, MC Prachi Rastogi, would like to conclude the event. Thank you so much for joining us today. This was an event organized by Unacademy.